ऑलराइट, इसके पहले के सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट AI in general, and also we discussed about what is data visualization and why is it required, and when to use what tools. Those are just basics, but required basics. And I asked you all to join this Discord server with your real name and make sure that you take down the note down your username and password and never forget it. Okay, याद रखना username password क्योंकि उस पे links आएंगे सारे. दूसरी चीज थी कैगल के अकाउंट बनाने आपको. कैगल कैगल के अकाउंट के लिए मेरे लिंक नहीं भेजा था, तो लेट मी जस्ट डू दैट राइट नाउ. In fact, let me do one thing. Let me make sure I share this and start sending the links quickly. ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं लिंक सेंड कर देता हूँ जल्दी से. Um, it will take a little bit of time for me to like manage access and everything, but I think आप लोगों ने मुझे भेज दिया है Gmail अकाउंट आपके. And make sure you also send me a screenshot of your admission and with the fees for it, and then I'll open the access. डिस्कॉर्ड का लिंक अगर किसी के पास नहीं होगा तो मैं शेयर कर देता हूँ अभी. कॉपी दिस लिंक फिर से मैं चैट पे डाल रहा हूँ यहाँ पे. डिस्कॉर्ड लिंक इसका पैगल लिंक. पैगल लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक. हो सके तो व्हाट्सएप पे एक ही अकाउंट यूज करो. डोंट यूज मल्टीपल फोन नंबर्स, क्योंकि एक यूजर का एक ही रखेंगे हम लोग बाद में वैसे भी. एडमिशन्स के लिए आशीष सर दर्शना मैम से बात करना है. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको बाद में फोन नंबर वगैरह चाहिए होगा तो. और व्हाट्सएप के लिए इसको जूम इन, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, हम लोग ग्रुप में से जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनको विल हैव टू रिमूव दो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हुआ नहीं है, फिर पेंडिंग है. दैट क्लीन अप विल हैपन सून. ओके, link is going to remain same for people who are joining, and then link or the joining of this particular meeting also is going to be through your email accounts. So make sure the email account जो आप शेयर कर रहे हो उसका यूजर नेम पासवर्ड आप याद रखते हो और फिर उसको रेगुलरली चेक करते रहते हो. ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट. Okay, chalo, let's get started. Today we'll start with a small story. The story is from London, and the story is about the data visualization. I think मैंने पिछले बार आपको टास्क दिया था कि आप data visualization अगर आपके आसपास कोई junk charts दिखते हैं तो लेके आओ. Did you guys get a chance to do that exercise? Anyone saw any junk charts anywhere? Alright, anyways, no worries. Throughout the course जब भी आपको कोई junk chart दिखेगा आप शेयर कर सकते हो WhatsApp ग्रुप पे. ऑलराइट, या फिर कोई अच्छा प्लॉट दिखता है which is very much telling or very much clean and tells a good story, you should definitely share that too. So this story is from 19th century London, and लंदन में तब कॉलरा का आउटब्रेक हुआ था. और कॉलरा इज यूजुअली अ डिसीज which causes severe डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन होता है. एंड ऐसे लोगों को लगता था कि कॉलरा जो है वो एक पर्टिकुलर फाउल स्मेल, जब लोग मर जाते हैं उनके डेड बॉडी से जो स्मेल आता है उससे उसकी वजह से कॉलरा होता है. मियास्मा बोला जाता था उसको, और उसकी वजह से कॉलरा होता है ऐसे बोला जाता था वहां पे. ठीक है, इन 1854 एंड 1855 बिफोर दैट टू प्लेग्स होते थे बहुत सारे, एंड पीपल यूज्ड टू माइग्रेट मूव, एंड इट वाज बेसिकली समथिंग व्हिच इज अननोन कंप्लीटली. एंड इन 1854 there was a very significant outbreak that occurred in a particular district in London. Okay, Soho district to be very precise. The name was Soho district, and there was a person called as John Snow,
and he had a medicine knowledge, and he was also an epidemiologist, and he set out to discover what exactly is causing this outbreak. He was hearing all the stories that this is because of foul smell of dead bodies and all of that, but he wanted to make sure that's true, that's the truth. Okay, and then he started gathering meticulously a lot of information, interviewing the residents, examining all the medical records that were available at that particular time, and then based on that, what he decided that let's try to plot it out on a simple map. Okay, and that map that he plotted it out was called as a ghost map. Okay, it was called as a ghost map, and the map basically looked something like this. Okay, जैसे आपके पास में गूगल मैप वगैरह होता है, वैसे ही पेपर पे पहले मैप्स होते थे, करेक्ट? तो ये मैप कुछ इस तरह से दिखता था। ये सोहो डिस्ट्रिक्ट का मैप है, और इस मैप पे आपको ये जो रेड कलर के डॉट्स है, वो है बेसिकली कॉलरा की वजह से डेथ्स। ओके, एंड ऑन दिस पर्टिकुलर मैप, जो यहाँ पर बिल्डिंग्स है, उस बिल्डिंग में कितने लोग मरे, he was trying to keep track of that using those red dots. And then he also showed where are the water pumps. ठीक है, कहाँ से पानी भर रहे हैं लोग. So there's a water pump here, there's a water pump here, there's a water pump here, and there is a water pump somewhere on the this side, I think. There's no one here. Okay, and as you can see here, okay, from this particular ghost map that he called it, in 1854 he pointed out that there is a correlation between the people who are drinking water in this particular at this particular water pump and are getting the cholera and dying, versus people who are drinking water from the other water pumps. There are not many people dying in that area. Okay, many, maybe one or two are dying because they may travel, they may drink water here and there. But as you can see here, it is very much clear that in this water pump is very close to what where the most of the cholera deaths are happening. And this helped him convince people that the water that the cholera itself is not caused by something which was believed to be smell, but it was caused due to water and contaminated water. Okay, and it was clearly visible in that particular representation. And he persuaded the local authorities to remove the handle, and as soon as the handle was removed, he was successful in basically stopping all the deaths. Okay, many people were saved because of that particular idea of just basically first of all figuring out why are people dying, and removing all the obvious things around it. Okay, and that's an example of how data visualization, as simple as this, can be really effective. Okay, all right. I think I was telling you all to go and watch this video. I hope you all got a chance to watch it. If not, make sure you go and watch this video. Okay, I can share this link to you all. This video is basically for people who think, do we really need to be very smart to achieve good things, achieve success in the life, or do we have to do something else? Okay, and Angela basically talks about a lot of experience that she had with students and with people that she has worked with, and according to her, it's not the intelligence, it's not the wealth, it's not the surroundings, but most of the times it is just the grit to do every day the hard work. Okay, the hard work in your case is going to be studying for AIML, studying, trying to gain new skills every day, and keeping up with the course. Okay, आप अपने दिन में से एक टाइम डिसाइड कर लो कि ये टाइम में मुझे पढ़ाई करनी है, और उस वक्त आपको कुछ और करना ही नहीं है. यू हैव टू स्टडी. ओके, इफ यू डोंट स्टडी ऑन दैट टाइम, देन यू should not go to sleep. You should basically do your work and then go to sleep. मैं बहुत सारे आई थिंक कुछ होमवर्क मैंने पहले भी भेजे थे. आई होप यू ऑल वर एबल टू डू दैट, एंड हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चंस, लेट मी नो. और जो पाइथन का कोर्स मैंने भेजा था आपको फॉर प्री रिक्विजिट, ऑब्वियसली हम लोग कवर करेंगे पाइथन भी, लेकिन अगर आप वो पहले भी करते हो तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू. जल्दी जल्दी पिकअप कर लोगे आप चीजें. ऑलराइट, विद दैट इन माइंड, लेट्स मूव ऑन टू दिस सेशन.
All right. We are going to learn about probability today. I hope कि आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड है प्रोबेबिलिटी के, जिन लोगों को याद नहीं है प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा, या दिस इज जस्ट काइंड ऑफ रिफ्रेशर. प्रोबेबिलिटी के बेस कुछ मॉडल्स होते हैं AIML में स्पेसिफिकली. जब हम लोग प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं एट दैट टाइम वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बीइंग ट्रू और फॉल्स की कितनी है. सो प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा कुछ पुराने मॉडल्स हैं या फिर ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में कुछ मॉडल्स हैं जो बेसियन प्रोबेबिलिटीज यूज करते हैं. ओके, विल लर्न अबाउट देम टू. इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आपने पहले भी पढ़ा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज वगैरह. इट्स वी आर ट्राइंग टू ओनली बी ऑन अ सरफेस लेवल फॉर प्रोबेबिलिटी, ताकि आपको जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे ना हो कि आपको पता नहीं है बिल्कुल. ठीक है. प्रोबेबिलिटी is basically a measure of how likely a particular event is going to happen, and the range of probability is between 0 and 1. If an event is for sure going to happen, then the probability of that is 1. If the event is not going to happen, then the probability of that is 0. For example, for sure the sun is going to come up tomorrow, as in based on physics that we know, then the event, yeah, the probability of that event is 1. Okay. Similarly, if you throw something up, it's going to come down. Okay, depending on how fast you throw. But let's say you just throw a ball with your own hands, it's going to come down. That's for sure. So probability of the ball coming back down is again 1. Probability of ball not going down is 0. Okay, so that's how probabilities basically work. Okay? आप जब वेदर ऐप ओपन करते हो, वेदर ऐप पे आपको दिखता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज 0.7%, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज मे बी 0.7 बोल रहा हूँ, इज बेसिकली 70%. जब मैं मॉडल्स में प्रेजेंट प्रोबेबिलिटीज वगैरह की बात करूंगा, दैट टाइम I'll sometimes say 0.7, but sometimes I may also say 70%, 80%. So percentage को आप convert कर लेना within your 0 to 1 range. Okay? It's no big deal. एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर प्रोबेबिलिटीज में आपको जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपिंग अ कॉइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ डाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है. Many times in machine learning also you'll do many experiments. In fact, in software engineering also you do many experiments. Okay. So experimentation is core to all the machine learning and AI currently. ठीक है. तो experimentation का मतलब ही होता है कि आप एक particular set of चीजें करना चाहते हो to measure the outcome, या फिर उस outcome, जब वो particular outcome होता है तो उसका is it good or bad for the business. So those kind of experiments you will be doing. ठीक है. Experiment का मतलब होता है कि you basically are creating a कंटेंट स्पेस जहां पर आप को पता है कि आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, और उन्हीं आउटकम के बेसिस पे आप मैट्रिक्स वगैरह मेजर करते हो. सो फॉर एग्जांपल, अगर सिंपल एक्सपेरिमेंट्स का एग्जांपल देखें तो फ्लिपिंग अ कॉइन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. इफ यू टॉस अ डाइस, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंट. आपके पास में एक डेक है, प्लेइंग कार्ड का डेक है, उसमें से अगर आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, देन दैट्स कॉल्ड एज एन एक्सपेरिमेंट. ओके. जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होते हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं. अगर आपने सारे के सारे आउटकम लिख दिए इन अ कर्ली ब्रेस लाइक दिस, इसको बोला जाता है सेट. ओके. एंड दिस इज कॉल्ड एज योर सैंपल सेट, और दिस इज कॉल्ड एज योर सैंपल स्पेस. इसका मतलब है कि इसके बाहर कोई और आउटकम नहीं आ सकता है. अगर आपने कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. अगर आपने 6 साइडेड डाइस रोल किया, या तो आपके उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, एक बार टॉस करने पे. ठीक है. अगर आपने 2 बार टॉस किया और समेशन किया दोनों का, तो आपके पास में ये सारे आउटकम्स आ सकते हैं. इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता. ओके. दिस इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस. ओके. सैंपल स्पेस का एक दो कंडीशंस होते हैं, या फिर दो प्रॉपर्टीज होते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड सेकंड इज कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. याद करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट समथिंग दैट टू कीप इन माइंड. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर ये आया एक बार टॉस करने के बाद, तो ये दूसरा नहीं आएगा. एक ही आउटकम आएगा, राइट. यू विल ईदर गेट दिस और यू विल गेट दैट. यू वोंट गेट बोथ एट द सेम टाइम. ओके. सिमिलर टू अदर वंस टू. अगर आपने एक कार्ड ड्रॉ किया तो हो सके एक ही कार्ड ड्रॉ करोगे, आप 2 कार्ड नहीं ड्रॉ करोगे एक साथ. ऑलराइट. कलेक्टिव एग्जॉस्टिव का मतलब होता है अगर आपने सारे सैंपल स्पेसेस को कलेक्ट कर दिया, तो उसके अलावा और कुछ आउटकम्स नहीं हो सकते आपके. दोज आर द ओनली आउटकम्स पॉसिबल. So that is why it is called as collectively exhaustive and mutually exclusive.
प्रोबेबिलिटी लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं. समटाइम्स you'll write p of h, sometimes you'll write p of, अगर आपको नॉट की प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन लिखा जाता है, या फिर ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सी लिखा जाता है. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ टेल. ओके, ऊपर सी लिखा जाता है कुछ कुछ किताबों में. ऑलराइट, अगर हेड या टेल या आपकी आउटकम्स है तो आपको पता है कि अगर टेल नहीं है दैट इज गोइंग टू बी अ हेड. So these are basically mutually exclusive like this. Okay, some basics. प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए एक सिंपल तरीका है. इट इज कॉल्ड एज अ ट्री डायग्राम. ओके, ट्री डायग्राम में आप सारे पॉसिबिलिटीज लिखते हो एंड देन यू बेसिकली काउंट ये पॉसिबिलिटी कितनी बार आ रही है, एंड दैट विल गिव यू प्रोबेबिलिटी वेरी इजीली. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्री डायग्राम करना है कि एक 4 साइडेड डाइस है आपके पास में, ठीक है. 4 साइडेड डाइस मतलब आपके पास में सिर्फ 4 ही आउटकम आ सकते हैं, 1 2 3 या 4. वो ट्रायंगल शेप के होते हैं ना, वो 4 साइडेड डाइस ट्रायंगल शेप के होते हैं. इफ यू ऑल रिमेंबर, इफ यू ऑल हैव सीन एनी ऑफ देम, तो उसमें 4 ही आउटकम रह सकते हैं, 1 2 3 या 4. ओके, सो अगर आपको ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको बोलना है कि मैं 2 डाइस रोल करने वाला हूं एंड देन आई वांट टू चेक probability of certain event happening, then you can do a tree diagram something like this. So यहाँ पे रूट, जहां पर आपने एक भी डाइस रोल नहीं किया, आपने पहला डाइस रोल किया, you got 1, और you'll get 2, और you'll get 3, और you'll get 4. ठीक है, एक बार आपको 1 मिल गया, उसके बाद में फिर से डाइस रोल जब आप करते हो तब आपके पास फिर से 4 ऑप्शन आते हैं. या तो इस 1 के आगे फिर से 1 आएगा, इसके आगे फिर से 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा. ठीक है, सेकंड डाइस रोल पे. तो दिस इज हाउ यू बेसिकली ड्रॉ ट्री डायग्राम. ओके, अगर अभी आपको पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ समेशन ऑफ 2, ओके, दोनों का सम 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो आप क्या काउंट करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ चेक करोगे कि 2 सम कितनी बार हो रहा है, एक ही बार हो रहा है यहाँ पर. ओके, एंड देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, आपकी 16 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16. करेक्ट, तो 1/16 द प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग दिस ट्री डायग्राम. देयर आर अदर वेज आल्सो ऑफ सॉल्विंग दिस. अगर आपको दूसरा टेक्निक पता होगा तो यू बेसिकली कैन यूज दैट टेक्निक टू. ओके, but tree diagram is one way, and it is also visual way of solving the probabilities, and it can become sometimes easy to explain also. All right, अगर आपको पूछा जाए what is the probability of getting a summation less than 3, equal और less than 3, तो क्या बोलोगे आप, लेस देन और इक्वल 3 के कितने प्रोबेबिलिटीज है यहाँ पर चेक करोगे, 2 1 है, ये 3 है, और ये है. ठीक है, देयर ओनली 2 आउटकम्स व्हिच आर लेस देन और इक्वल टू 3, दैट इज 2/16 which is 1/18, 1/8. ठीक है, 2/16 इज 1/8, and that is a probability. अगर आपको पूछा जाए what is probability of getting a summation of 4, can someone tell me what is that? 4 सम आना चाहिए आपका, कितनी probability है उसकी? yes 3. नहीं, वो तो आउटकम हो गया ना. 3 बाय कितना आएगा? what is the probability of getting a summation of 4? 4 समेशन आना चाहिए आपका, दोनों डाइस रोल के मिला के. So 3/16. Yeah, 3/16. करेक्ट, सो दिस इज, ये एक है आपका, उसके बाद में दूसरा ये है, तीसरा ये है. राइट, दिस नथिंग एल्स, 3/16. करेक्ट. What is probability of getting a summation less than 6? 6 और लेस देन 6 की समेशन कितनी रहेगी प्रोबेबिलिटी, 6 या फिर 6 से कम? 10/16 सर. 10/16 आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, यू जस्ट टेक, काउंट करते हो राइट, कितने बार 10 से कम वाले हैं ऊपर से नीचे तक, या फिर आप 6 से बड़े वाले काउंट कर लो, उसको 1 माइनस कर दो, वो भी कम करेगा. करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री कैलकुलेट करो, 6 से बड़े कितने, मोर देन 6 यू हैव जस्ट दिस राइट, 4 8 7, 2 ही है. करेक्ट, देयर इज ओनली 2, दिस वन आल्सो. 7. या ये है, और कौन सा है, 1 2 3, और कहां पे रहे 6 से बड़े, और कहां पर है 6 से बड़े, तो कितना है, 13/16 है आपका आंसर, 10/16 नहीं है राइट,
13/16, correct? Yes, sir. Okay. All right. Chalo. So that's how you use a tree diagram to basically solve the probability questions. या फिर to understand the probability, this is easy way. Just a brush up. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं इसके ऊपर, या फिर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस समथिंग दैट टू रिमेंबर. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं प्रोबेबिलिटी के. अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग 52 कार्ड्स का डेक होता है, उसमें से अगर आपको फेस कार्ड निकालने हैं, तो फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फेस कार्ड आर ओनली जे क्यू एन के, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 12/52, करेक्ट. नॉट गेटिंग अ फेस कार्ड इज 1 माइनस 12/52. ओके. ऑलराइट, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है. कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? एक फेयर कॉइन है, उसको 3 बार टॉस किया आपने. ओके, एक फेयर कॉइन है, उसको 3 बार टॉस किया आपने. आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए, एग्जैक्टली एक हेड आना चाहिए, और थर्ड टॉस पे आपका हेड आना चाहिए. ट्री डायग्राम याद करो कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग. 3 टॉस करने हैं, करेक्ट. तो 3 टॉस ड्रॉ करो ट्री डायग्राम पे और आंसर बताओ इसका. I'll give you 2 to 3 minutes to solve this. नथिंग कॉम्प्लेक्स, राइट. सिंपल सिंपल प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस हैं, इससे ज्यादा नहीं रहेगा. ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में. देयर इज नो मोर मैथ बियॉन्ड. बहुत ज्यादा मुश्किल मैथ नहीं रहेगा. So there will be 8 outcomes. Yeah, 8 outcomes, that makes sense. What about the probabilities? First one 7/8. Okay, what about second and third? Second will be 3/8, sir. One head is exactly one head. Okay, third one. सबको सॉल्व करना है. Everyone do the exercise. So it will be 4 for last one, getting the head on third toss. कितना रहेगा? 4. Probability 4 by का 8. rate 0 to 4/8. Okay, so how much is that?
It's almost 50%. Yeah, Makes sense. 1 by ओके, लेट्स टेक अ लुक एट इट। ठीक है, ये सारे आउटकम्स है आपके पास। सो फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, थर्ड टॉस। ठीक है, ये सारे आउटकम है। आपका जो सैंपल स्पेस है वो सैंपल स्पेस बन जाएगा ये सारे के सारे आउटकम्स। ओके, करेक्ट। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड निकालो यहाँ से, कहाँ कहाँ पे यहाँ नो हेड वाला ये है। ठीक है, नो हेड एक ही है, बाकी सब में एटलीस्ट वन हेड है, तो 7/8। ओनली वन हेड यहाँ पे ये है, ये है, ये है। ठीक है, 3/8। थर्ड टॉस पे हेड आने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है? यहाँ पर थर्ड टॉस पे हेड आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ठीक है, 4/8। नाउ इनफैक्ट जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, थर्ड टॉस पे हेड, अगर आप इसको ठीक से सोचो तो इट इज टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फर्स्ट टॉस पे हेड आया, सेकंड टॉस पे हेड आया, दैट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड कि थर्ड टॉस पे हेड आएगा नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड टॉस पे जो हेड आने वाला है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अर्लियर टॉसेस। ठीक है, थर्ड टॉस पे हेड आएगा नहीं आएगा, इट हैज नो डिपेंडेंसी ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड टॉस। ऐसे जरूरी थोड़ी ना कि पहले बार अगर टेल आया तो दूसरी बार टेल आएगा, तो फिर तीसरी बार भी टेल ही आएगा। इट इज इम्पॉसिबल दैट यू कैन से दैट दे आर डिपेंडेंट, बिकॉज हमने पहले ही बोला था कि डाइस रोल जो आपका जो टॉस कॉइन जो है, इट इज अनबायस्ड। ठीक है, इट इज नॉट अ लोडेड कॉइन, इट इज अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन मतलब उसमें जो भी प्रोबेबिलिटी टेल की रहेगी वही प्रोबेबिलिटी हेड की रहेगी। तो थर्ड टॉस पे जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज 1/2 ही रहेगा। सेम एज फर्स्ट टॉस पे हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। सेम एज सेकंड टॉस पे प्रोबेबिलिटी मिलनी कितनी है हेड की? दैट इज अगेन 1/2। ओके, सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आपके तीनों के तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ऑलराइट, देयर आर couple of things that can help us check if certain events are independent or not. I'll talk about them. इंडिपेंडेंट इवेंट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब मशीन लर्निंग में मॉडलिंग करते हैं डेटा की, whenever we do the models or when we create the models, जो वेरिएबल्स हम लोग बोलते हैं कि that these are the variables of my model, we make a small assumption saying that the variables are independent of each other. There is no dependency. Okay, a person having an education of masters has no dependency of the person living in a certain city. Okay, although in real world वो डिपेंडेंसी होती है, बट हम लोग जब मशीन लर्निंग के मॉडल्स, जब बेसिक मॉडल्स बिल्ड करते हैं, तब हम लोग अज्यूम करते हैं कि इन दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, ऑलराइट। प्रोबेबिलिटी के साथ साथ कुछ सेट के ऑपरेशंस भी है। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस। सेट ऑपरेशन का मतलब है, क्योंकि यहाँ पर हमने सैंपल स्पेस की बात की, तो ये सैंपल स्पेस है आपका। अगर सैंपल स्पेस है आपके पास में, अगर दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो मतलब है कि दो सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन करते हो तो आपको कॉमन चीजों के बारे में बात कर रहे हो आप। ओके, यूनियन कर रहे हो तो इसका मतलब आप दोनों के इवेंट आइटम्स को मर्ज कर रहे हो। ये अगर सैंपल स्पेस है या फिर यूनिवर्सल स्पेस है, और ये दो इवेंट्स है, इवेंट ए और इवेंट बी। ठीक है, इवेंट ए हो सकता है इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द सेकंड थर्ड टॉस, तो जितने भी TTH, HTH, HHH, ये सारे इस पर्टिकुलर सैंपल में आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज इवेंट वन। अगर बी रहेगा आपका इवेंट ऑफ लेट्स से गेटिंग गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, तो आपके जितने भी एटलीस्ट वन हेड वाले वो सारे इसमें आ जाएंगे। दोनों का इंटरसेक्शन करोगे मतलब क्या? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड गेटिंग हेड ऑन सेकंड थर्ड टॉस, उन दोनों का इंटरसेक्शन जब करोगे तो दोनों में जो भी बचा हुआ रहेगा दैट इज गोइंग टू गिव दिस। ठीक है, रिमेंबर दिस नाउ। ठीक है, ये ए और ये बी याद रखो। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, आई विल गो बैक टू द स्लाइड एंड आस्क यू सिंपल क्वेश्चन अगेन।
what is the probability of getting at least one head? Okay, at least one head. All right. And a tail on the first toss. फर्स्ट टॉस पे टेल मिलना चाहिए एंड यू शुड हैव एटलीस्ट वन हेड. एंड बोल रहा हूं मैं, ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नाउ? 3/8. कितना? So 2 by 8. 2 by 3/8. 3/8. 3/8 ना. 3/8. 3/8. करेक्ट. तो 3/8 यू बेसिकली टेक दिस, राइट. फर्स्ट टॉस पे टेल मिलना चाहिए, मतलब ये सारे वाले, उसमें से कम एक हेड है, तो ये 3, तो 3/8. ओके, दैट्स हाउ यू वर्क आउट. ऑलराइट, मेक सेंस. सेट ऑपरेशंस कैन बी यूजफुल देयर टू. यूनियन अगर बोला जाए, तो अगर मैंने बोला कि फर्स्ट टॉस पे टेल आना चाहिए और एटलीस्ट वन हेड बोल दूं मैं, तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी 7/8 अगेन. ओके, Yes. गुड. इसके अलावा कुछ नॉट ए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री ए वगैरह आपको पता ही होगा. सीखा. अगर आपको बोलना है कि एवरीथिंग दैट इज नॉट ए, तो यू बेसिकली डू एवरी वन और एवरी आउटकम विच इज आउटसाइड दिस सेट. ओके, स्मॉल सेट ऑपरेशन. ये डायग्राम याद कर लो अगर आपको याद रखनी सारी चीजें, ठीक है. यूनियन का मतलब होता है दोनों का यूनियन करना. इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन चीजें. डिफरेंस मे बी ये नई चीज होगी कुछ लोगों के लिए. डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर कोई कॉमन चीज है तो उसको निकाल दो, और जो सिर्फ यूनिक टू दिस पर्टिकुलर आइटम है वो रखो. a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए. ठीक है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए. याद रखना है आपको, ठीक है. दिस इज always true. a minus b is not equal to b minus a. Okay. Symmetric difference का मतलब होता है a minus b union b minus a. ठीक है, a minus b union b minus a, मतलब आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होता है. इसको x और भी बोला जाता है. x और. All right, you can take a screenshot or I'll share the slides later. You can skip this. I think this is fine. ये चीज याद रखनी है आपको अगर आपको सेट ऑपरेशन सॉल्व करने हैं. तो अगर कर्ली ब्रेसेस में कुछ रहेगा तो वो सबसे पहले सॉल्व करना होता है, या फिर ब्रैकेट में कुछ रहेगा तो उसको सबसे पहले सॉल्व करना होता है. उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट वाले चीजें पहले सॉल्व करनी होती है. उसके बाद में आपका यूनियन और इंटरसेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन दिया है ये, ठीक है, ए है, बी है और ये सी है. अगर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी करना है तो आप कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो. पहले इन दोनों का करो, फिर उन दोनों के आंसर का करो. दैट वर्क्स. अगर आपका ऐसे ब्रैकेट में रहेगा ये, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद में बाहर वाले के साथ में सॉल्व करोगे. सो दैट इज बेसिकली द सीक्वेंस इन विच यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस. ठीक है, पैरेंथेसिस सबसे पहले, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर यूनियन एंड इंटरसेक्शन. दीज आर ऑल बेसिक्स. आपको कब यूज करना पड़े बता नहीं सकते हम लोग. सो जस्ट टू रिमेम्बर समथिंग. ओके, ऑलराइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मशीन लर्निंग पार्ट. मशीन लर्निंग या फिर एआई में हम लोग ट्राई क्या करते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल्स हमारे कंप्यूटर को दिखाते हैं या फिर सिस्टम को दिखाते हैं, एंड द कंप्यूटर इज गोइंग टू बेसिकली लर्न फ्रॉम दोस एग्जांपल्स. पैटर्न रिकॉग्नाइज करना चाहता है वो, या फिर कुछ तरह के कुछ, इट वांट्स टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट. ओके, अगर आपको किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो आप सबसे पहले क्या आप करोगे, कुछ एग्जांपल्स लेके आओगे और वो एग्जांपल्स को दिखाओगे, and based on that example the kid is going to learn something. Okay, now what is he going to learn? It all depends on how he is picking up the patterns. Okay, अगर आपने उसको कुछ अलग अलग शेप की चीजें दिखाई, ठीक है, लेट्स जस्ट डू अ मेंटल थिंग हियर. लेट्स से आपने एक गोल कलर का या फिर एक
सर्कल बनाया और उस सर्कल को बोला कि उस सर्कल में ग्रीन कलर फिल किया और बोला ये ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद में आपने एक स्क्वायर बनाया और उस स्क्वायर को बोला कि उस स्क्वायर के अंदर ब्लैक कलर डाल दिया, ठीक है, और बोला कि ये ब्लैक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन रियली हियर इज, अगर आप उसको फिर से सवाल पूछोगे एक नया सर्कल दिखा के, हैज ही easy learning the color or easy learning the shape? That's the biggest question. Okay, अगर आपने उसको सर्कल में ग्रीन कलर दिखाया और स्क्वायर में ब्लैक कलर दिखाया और बताया कि ये ब्लैक है और ये ग्रीन है, तो वो हो सकता है सर्कल को एज अ ग्रीन समझ ले, ओके, शेप लर्न कर ले, although you're trying to teach him colors but he's trying to learn the shape. Okay, and that can very well happen. That always happens in computer systems. Okay, you try to teach them something but it learns something else because the way you are giving the examples. Okay, that is called some kind of a bias. लेकिन जो भी चीज हो, whatever you try to learn or whatever you try to teach, it has to be taught through examples, and that kind of a learning is called as a supervised learning. Okay, supervised learning का मतलब होता है कुछ examples दो और वो example के basis पे the system is going to pick up the pattern. Okay, अगर आप कुछ कलर्स के एग्जांपल देना चाहते हो तो आप रेड कलर की कुछ चीजें दिखाओगे एंड देन कंप्यूटर इज गोइंग टू लर्न अबाउट दोस रेड कलर थिंग्स, हाउ द रेड कलर बेसिकली लुक्स, व्हाट द ब्लू कलर इज बेसिकली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। एग्जांपल के साथ में आप लोगों को लर्न करना है चीजें। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अलावा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग शुरू करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो मेन पार्ट्स होते हैं, जब दो मेन टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो कि ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है। अगर एक इमेज दिखाते हो तो ये इमेज एक डॉग की है या फिर कैट की है, एग्जांपल ऑफ अ क्लासिफिकेशन टास्क। अगर आप वेदर की इंफॉर्मेशन फीड इन करते हो और फिर मॉडल आपको बताता है कि वेदर इट्स गोइंग टू रेन और इट इज नॉट गोइंग टू रेन, ओके, रेन या फिर नॉट गोइंग टू रेन, इट्स अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ क्लासिफिकेशन टास्क। ओके, अगर आप एक हाउस की इंफॉर्मेशन फीड इन करते हो और आपका मॉडल आपको प्रेडिक्ट करके देता है इस हाउस का प्राइस कितना रहना चाहिए, देन दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ रिग्रेशन टास्क। ओके, उसके बाद में अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान की इंफॉर्मेशन फीड इन करते हो एंड देन यू प्रेडिक्ट द सैलरी, देन दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ रिग्रेशन, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम बेसिकली सेइंग इफ यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट अ कैटेगरिकल वेरिएबल, ठीक है, अगर आप एक कैटेगरिकल वेरिएबल प्रेडिक्ट करना चाहते हो देन दैट बिकम्स अ क्लासिफिकेशन टास्क। अगर आप न्यूमेरिकल वेरिएबल प्रेडिक्ट करना चाहते हो देन दैट बिकम्स अ रिग्रेशन टास्क, ठीक है। रिमेंबर दिस, दो टाइप के लर्निंग्स होते हैं इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लर्निंग्स, वन या फिर टू टाइप ऑफ टास्क्स, वन इज क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज रिग्रेशन। ऑलराइट, हम लोग बहुत देर से मॉडल मॉडल बोल रहे हैं। मॉडल होता क्या है एक बार Just a second. Yeah. Just a second. I'm talking. तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगरिकल वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना और रिग्रेशन का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना। No, I see. ऑलराइट, सो हम लोग बहुत देर से मॉडल मॉडल बोल रहे हैं, लेट्स ट्राई टू गेट द डेफिनेशन आउट ऑफ द वे, ठीक है। मॉडल का मतलब होता है कि जो भी रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी रियल वर्ल्ड में है उसका सिंप्लीफाइड वर्जन रिप्रेजेंट करना, ओके, या फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट वर्जन बनाना। गूगल मैप इज एन एग्जांपल ऑफ अ मॉडल, ओके। गूगल मैप इज एन एग्जांपल ऑफ अ मॉडल, बेसिकली सेइंग फिजिकल वर्ल्ड में कुछ चीजें रखी हुई है या फिर इधर उधर है एंड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मैप आउट ऑफ इट। उसमें सारी डिटेल्स नहीं डालोगे आप, ओके, यू विल नॉट से कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का कलर क्या है, इसका ये क्या है, ये वो क्या है। गूगल मैप का काम क्या है, उसका काम है कि यूजर को डायरेक्शंस में हेल्प हो या फिर एड्रेस फाइंड में हेल्प, एड्रेस वगैरह ढूंढने में हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है तो आप उसमें बिल्डिंग के कलर्स या फिर ये सारी चीजें नहीं डालोगे, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट, वो नेविगेशन में हेल्पफुल नहीं है। सो you basically want to represent
the real world in a simplified manner, okay, so that it serves the task. Alright, that is what a model basically means. अगर आप सिविल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर्स के साथ में काम करते हो, आपको पता है कि बिल्डिंग के मॉडल्स बनाए जाते हैं, ब्रिजेस के मॉडल बनाए जाते हैं, राइट? ऑल दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी, ओके, ताकि रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर पाए मॉडल में. सेम थिंग इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द मशीन लर्निंग मॉडल्स ऑल्सो. ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल भी सेम चीज करना चाहते हैं. इट इज सिंपली ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड, ओके, लेकिन वो रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंट एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे कभी भी. दैट इज व्हाई वी से ऑलवेज दैट द मॉडल्स आर बेसिकली अप्रोक्सीमेट आंसर्स. वो कभी भी आपको एग्जैक्ट आंसर्स देने का ट्राई करेंगे, बट यू कैनॉट एक्सपेक्ट देम टू गिव यू एग्जैक्ट आंसर्स या फिर वेरी मच क्लोजर टू रियलिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, मॉडल आपको हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करके दे देगा, लेकिन उस हाउस का प्राइस उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है. इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एग्जैक्ट प्राइस, बट इट विल गिव यू अ रफ एस्टिमेट विच इज अ गुड इनफ एस्टिमेट फॉर यू टू स्टार्ट विथ. ओके, सिमिलरली अगर आपको एक मॉडल स्टॉक प्राइसेस प्रेडिक्ट करता है, इट इज नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट एग्जैक्टली कितना प्राइस होने वाला है. इट विल गिव यू रफ एस्टिमेशन कि ठीक है, इस स्टॉक का प्राइस इतना इतना ऊपर जा सकता है. ओके, दैट इज अगेन अ प्रेडिक्शन टास्क. ठीक है, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिग्रेशन टास्क बाय द वे. So model is basically trying to simplify the reality by hiding the details out of it. ठीक है, एक और एग्जांपल हो सकता है मॉडल्स का, जब हम लोग when COVID was happening in 2020 2021, there were many epidemiological models which were predicting spread कैसे होगा. ठीक है, ये स्प्रेड अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे हम लोग तो स्प्रेड ऐसे ऐसे हो सकता है. विजुअली वो मॉडल दिखाते थे कि ऐसे ऐसे स्प्रेड होंगे. तो दोस मॉडल बेसिकली नॉट टेलिंग कि इस आदमी को होगा उस आदमी को होगा. इट इज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू रफ एस्टिमेट कि इतने लोगों को हो सकता है अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं करोगे, अगर वैक्सीनेशन नहीं होंगे ठीक से, अगर पब्लिक हेल्थ की स्ट्रेटेजीज ठीक से बनाई नहीं गई तो पीपल माइट डाई इन द हॉस्पिटल्स एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, सो दैट इज व्हाई मॉडल्स आर यूजफुल. They don't want to give you all the details, but they want to give you a rough estimation so that the planning can be done properly. Okay, या फिर it can basically do a certain task as good as possible. अगर किसी मॉडल का टास्क है कि वो हाउस प्राइजेस प्रेडिक्ट करने वाला है तो उससे हाउस प्राइजेस ही प्रेडिक्ट करवाओ आप. ओके, अगर किसी मॉडल का काम है वेदर की इंफॉर्मेशन दे तो वो वेदर की ही इंफॉर्मेशन यूज करो उसको. यू डोंट आस्क हिम should I plan to stock में कहाँ इन्वेस्ट करूँ. You cannot, that weather model is not going to tell you that. Okay, so models are built for a specific reason and they serve the specific reason. Okay, similarly ChatGPT is an example of a model which is a basically large language model and it is trying to give answers to all the questions that you ask it. Okay, it knows how to store facts. It can also do Google search. It can also give you by searching things, but it is also limited. Correct, it is not like उसको कुछ भी सवाल पूछो तो it's not going to give you all the answers. For example, earlier on we saw that when ChatGPT released, तो ChatGPT को हम लोग बोलते थे कि अगर आपको उसको recent 1 घंटे पहले क्या चीज हुई वो पूछते हो तो वो बता नहीं पाएगा क्योंकि it is storing older information. Correct, so those were some issues with the models and they were addressed recently after integrating internet and everything with it. All right, but anyways, so models jo hote hain, they can remember some things, they can be used for a certain task and they should be used for that task only. And model का मतलब ही होता है कि simplified version of reality. Okay, simplified version या फिर abstracted version of reality. Types of model I want to tell, but this might be a little bit confusing. So जब हम लोग वापस कुछ 2-3 मॉडल पढ़ने के बाद में ये जल्दी क्लिक करेगा. ठीक है, ठीक है. एनीवेज, सो जब भी हम लोग मॉडल बिल्ड करते हैं तो मॉडल बिल्ड करने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी. ओके, तो कौन से टाइप की डेटा की जरूरत पड़ेगी हमें? जो जितना भी डेटा हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं वो सारा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि एक इमेज के अंदर डॉग है या फिर कैट है, तो जितने भी इमेजेस है डॉग और कैट्स के आप कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। ओके। अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि हाउस का प्राइस क्या होने वाला है, तो जितने भी हाउसेस है आपके पास में उस पर्टिकुलर एरिया में, उन सारे हाउसेस के प्राइसेस आप प्रेडिक्ट लेके आने के ट्राई करोगे। ओके, एग्जाम्पल्स लेके आने के लिए ट्राई करोगे आप। उसके अलावा और क्या क्या ट्राई करोगे आप? यू विल ट्राई टू गेट ऑल द वेरिएबल्स दैट माइट इफेक्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, या फिर दैट इफेक्ट द आउटकम। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, तो क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं? उसमें कितने बेडरूम्स है, उसका स्क्वायर फुटेज कितना है, उसके वो कौन से फ्लोर पे अवेलेबल है, उसका एरिया कौन सा है। अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि स्टूडेंट के स्कोर, एग्जाम का स्कोर कितना होने वाला है, तो आप क्या क्या डिपेंडेंट वेरिएबल्स लोगे, या फिर क्या क्या वेरिएबल्स आप अज्यूम करोगे यूजफुल है आपके लिए प्रेडिक्ट करने के लिए चीज। वो स्टूडेंट ने कितने आवर्स स्टडी किया है, उसके बाद में उसका स्लीप कितना हुआ है, उसका लास्ट लास्ट एग्जाम में स्कोर कितना था। सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द आउटकम। ओके, दैट अफेक्ट द आउटकम्स। ओके, सो जो वेरिएबल्स है उनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वी डोंट जस्ट कॉल देम वेरिएबल्स, वी कॉल देम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक टास्क दिया है, द टास्क इज टू प्रेडिक्ट वेदर द टास्क इज टू प्रेडिक्ट द हाउस प्राइस। ठीक है, तो आपका जो हाउस प्राइस है, ऑलरेडी एक टेबल रहेगा, उस टेबल के अंदर आपके पास में हाउस प्राइस नाम का कॉलम रहेगा। उस हाउस प्राइस के कॉलम के साथ साथ आपके पास में और भी कॉलम्स रहेंगे। इस हाउस में बेडरूम कितने, बाथरूम कितने, स्क्वायर फुटेज कितना है, एरिया कौन सा है। ठीक है, ये जो हाउस प्राइस छोड़ के बाकी के कॉलम्स है उनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, उनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और हाउस प्राइस जो है, जो हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, द थिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड इन प्रेडिक्टिंग इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट इसीलिए बोलना है क्योंकि दिस वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, so independent variables are the variables or the factors that have impact on the dependent variable. Okay, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग तरीकों से भी बुलाया जाता है अलग अलग किताबों में। Similarly, dependent variable also has variable different names, different books. Without getting confused, try to remember them through meaning. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरिएबल्स आपके एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं है एंड दे अफेक्ट और दे इम्पैक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली आपका एक ही होता है एक टास्क में। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ये मल्टीपल, ये एक ही होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यू विल हैव ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। देयर आर सम मल्टी लेवल क्लासिफिकेशंस, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है आपका। ओके, हाउस प्राइस एक ही कॉलम रहेगा, आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, एक वक्त पे एक ही चीज करोगे आप। ओके, इन द मॉडल्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को आप वाई वेरिएबल भी बोलते हो। ओके, वाई वेरिएबल भी बोलते हो, उसको आउटकम वेरिएबल भी बोलते हो, उसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोला जाएगा कुछ किताबों में, या फिर उसको टारगेट वेरिएबल भी बोला जाएगा। ओके, सो सेम थिंग बट डिफरेंट नेम्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप कभी कभी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोल सकते हो कुछ कुछ किताबों में, रिग्रेसर्स भी बोला जाता है, प्रेडिक्टर्स भी बोला जाता है, या फिर ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। दिस माइट बी न्यू फॉर सम पीपल। बाकी तो ऑब्वियस है, प्रेडिक्टर्स। प्रेडिक्टर्स मतलब वो चीज जो प्रेडिक्ट करने वाला है, राइट? दीज आर गोइंग टू प्रेडिक्ट समथिंग। ये आप ये सारे यूज करके आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो ना, तो दीज आर प्रेडिक्टर्स। रिग्रेसर्स, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू अस। दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये अलग अलग नाम है एक ही चीज के, रिमेंबर दिस।
Okay. Now let's talk about ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है इनके बीच में रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनके बीच में रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर वेदर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, लेट्स से टेम्परेचर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज गोइंग टू बी यूसेज ऑफ एसी। ओके, जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है तब ज्यादा लोग एसी यूज करते हैं या फिर एसी का यूसेज बढ़ जाता है। ओके, so there is a relationship between your independent variable which is temperature या फिर whatever the temperature outside is today, and then the usage of AC या फिर usage of fan or coolers whatever we use. Okay, so ये जो रिलेशनशिप है इनके बीच में हम लोग पता तो है हमें कि ये रिलेशनशिप है, लेकिन इसको क्वांटिफाई करने का जो तरीका है वो हमें अभी तक पता नहीं है। ठीक है, हाउ डू वी क्वांटिफाई इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इज इट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इज इट अ वीक रिलेशनशिप, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग भी बोला जाए तो फिर वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, वो मेजर करने का तरीका हमें अभी तक पता नहीं है। ठीक है, तो वो मेजर कैसे करते हैं वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मेजर करने के लिए दो तरीके हैं। जब न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं आपके पास में, यू बेसिकली कैन मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन देम। okay, you can measure the relationship between them by using two things. One is called as covariance and second is called as correlation. co का मतलब ये कि ये दो चीजों को एक साथ कवर करना चाहता है, राइट? कोवेरियंस, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सीओ डाल रहे थे। कोवेरियंस का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स, ठीक है, दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, हाउ आर दे चेंजिंग टुगेदर। Similarly, correlation is basically going to tell you वो जो कोवेरियंस है इन दोनों के बीच में वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज दैट कोरिलेशन और हाउ स्ट्रॉन्ग इज दैट रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, कोरिलेशन इज मोर कॉमनली यूज्ड बिकॉज इसका रेंज जो है इट इज फिक्स्ड, -1 से 1 के बीच में ही रहेगा आपका हमेशा कोरिलेशन। ओके, कोवेरियंस जो है वो आपको एक साथ मूव हो रहे या नहीं हो रहे उतना बता सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग या वीक किस टाइप का रिलेशनशिप है वो नहीं बता पाएगा कोवेरियंस। ठीक है, इसीलिए कोरिलेशन इज मोर कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट कैन आल्सो टेल यू द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स अ स्टूडेंट हैज वर्कड, अ स्टूडेंट हैज स्टडीड वर्सेस उसका एग्जाम में स्कोर कितना है। ओके, इन दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन रहेगा? जितना ज्यादा वो पढ़ाई करेंगे उतना ज्यादा स्कोर रहेगा। देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, सिमिलरली उन दोनों के बीच में कोवेरियंस भी सेम पॉजिटिव ही रहेगा, इट विल बी हाईली पॉजिटिव कोवेरियंस सिचुएशन। ओके, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं एक बार, लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। इसका मीनिंग बस इतना है कि वो दोनों दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। ओके, ये फॉर्मूला है, अगर आप याद कर पाते Excuse me, sir. या सर कोवेरियंस एक बार फिर से बताओ ना। ठीक है, कोवेरियंस जो है इट टेल्स यू whether the variables are moving together in the same direction or not. ठीक है, अगर एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर जा रहा है, या एक ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे जा रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट द कोवेरियंस बेसिकली मेजर्स। हाउ डू दे चेंज टुगेदर? ओके, वो उन दोनों में चेंज कैसे हो रहा है एक साथ, दैट इज ऑल इट मेजर्स। ठीक है, एक फॉर्मूला देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, फॉर्मूला एक बार देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से आपके पास में दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक वेरिएबल है ये विच इज नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट हैज स्टडीड, दूसरा वेरिएबल है ये y विच इज एग्जाम में स्कोर कितना आया उसका। ठीक है, नाउ मुझे फिगर आउट करना है कि ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, इज देयर अ पॉजिटिव, अगर ज्यादा पढ़ते हैं तो ज्यादा स्कोर आता है क्या? वी नो फ्रॉम आवर ओन नॉलेज दैट दिस इज ट्रू, लेकिन उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमारे पास में कोरिलेशन एंड कोवेरियंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ आवर्स है इसका एवरेज निकालते हैं। ओके, यू गॉट द एवरेज ऑफ 4। फिर जो दूसरा वेरिएबल है
विच इज एग्जाम स्कोर, उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं, दैट बिकम 70। ठीक है, कोवेरियंस निकालने का मतलब है कि आप ये जो नंबर है ये 3, ठीक है, 3 - 4 करो। ओके, जस्ट मैथमेटिकली बाद में देखते हैं, हम लोग फॉर्मूलाज वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है आपको कुछ। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 - 4 कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग कर रहे हैं 65 - 70। ओके, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, x - x बार, y - y बार, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 - 4 करते हैं। 3 - 4 कितना आएगा, -1, तो यहां पर -1 लिख दिया। ओके, फिर हमने बोला 65 - 70, 65 - 70 कितना आया, -5। ओके, -5 लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया हमने। ओके, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, 5 - 4 किया, 1 लिखा, 75 - 70 लिखा, 5 लिखा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 - 4 -2, फिर 60 - 70 -10, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, राइट, हर एक नंबर को उसके एवरेज से हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ओके, अभी लेट मी जस्ट पॉज हियर। ठीक है, एक छोटी सी बात है यहां पर, अगर मुझे x का x के साथ ही कोवेरियंस निकालना है, ठीक है, x का x के साथ ही कोवेरियंस निकालना है, तो क्या रहेगा मेरा आंसर, x - x बार मल्टीप्लाइड बाय x - x बार। मतलब क्या, x - x बार का स्क्वायर करता हूं मैं, करेक्ट, x - x बार का स्क्वायर करता हूं अगर मुझे x का ही कोवेरियंस निकालना है x के साथ में। अगर आप वेरियंस का फॉर्मूला याद करते हो, जो हमने पहले सेशंस में पढ़े थे कुछ, तो वेरियंस में हम लोग क्या करते थे, वी आर जस्ट टेकिंग द नंबर, सबट्रैक्टिंग द एवरेज, उसका स्क्वायर करते थे और उन सबका समेशन निकालते थे। ठीक है, मतलब कोवेरियंस विद इटसेल्फ इज बेसिकली वेरियंस। ठीक है, इसीलिए वो वेरियंस जो नाम है वो वहां से आ रहा है। ओके, दो के बीच में वेरियंस हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग वेरियंस के फॉर्मूला से ही वो डिराइव किया हुआ है बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कोवेरियंस बेसिकली इज। टेक अ लुक एट दिस। ओके, यहां तक ही देखो, ठीक है, डोंट लुक एट द बॉटम राइट नाउ। ना देखो, यस, क्वेश्चन। सर इसका यूज कहाँ पे होगा? हम लोग जब वेरिएबल्स चेक करते हैं, राइट, हमारे जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, तब हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, कौन कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में प्रेडिक्शन करना है कि आपको हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करना है, ओके, हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करना है और आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है, आप हाउस प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हो यूजिंग द नंबर ऑफ बेडरूम्स, यूजिंग द स्क्वायर फुटेज, या फिर यूजिंग द नंबर ऑफ बाथरूम्स। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा वेरिएबल ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, लेट्स से आपको पता चलता है कि नंबर ऑफ बेडरूम ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हाउस का प्राइस अगर आपको बढ़ाना है तो नंबर ऑफ बेडरूम बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो आपका हाउस का प्राइस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। करेक्ट, यू बेसिकली नो कि कौन सा पैरामीटर ट्यून करने से आपका आउटकम भी ट्यून होने वाला है। दैट इज हाउ यू यूज दिस रिलेशनशिप और इंफॉर्मेशन। ओके, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा पैरामीटर ट्यून करोगे तो कौन सी चीज मूव होगी। ओके, मींस प्रोपोर्शनल। करेक्ट करेक्ट। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। लेट्स से आपके पास में बजट है, मार्केटिंग स्पेंड का बजट है। ठीक है, अभी मार्केटिंग स्पेंड का जो बजट है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डिजिटल मार्केटिंग, इन न्यूज़पेपर मार्केटिंग, या फिर इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, जो विच इज बेसिकली द सेम थिंग, बट डिजिटल मार्केटिंग में बोल रहा हूँ, रेडियो पे आपको मार्केटिंग करना है, या फिर आपको न्यूज़पेपर में मार्केटिंग करना है, या फिर आपको सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है आपके पास में अभी। ठीक है, अगर आपको सेल्स बढ़ाना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने रेडियो पे मार्केटिंग किया तो मेरा कितना सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, मतलब क्या, रेडियो के मार्केटिंग स्पेंड वर्सेस नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, इन दोनों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। दूसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग न्यूज़पेपर में स्पेंड करते हैं तो कितना कितना इंक्रीज हो रहा है हमारा।
ओके, फिर उसके बाद में फाइनली आपका इस पे स्पेंड करते कितना इंक्रीज हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो तीनों में से जिसका भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है हम लोग उस पर स्पेंड करेंगे ज्यादा। करेक्ट। ऑब्वियसली कुछ देर के बाद में यू विल गेट डिमिनिशिंग रिटर्न्स कि इतना स्पेंड करने के ऊपर आप स्पेंड करके भी कुछ फायदा नहीं होता है, बट यू बेसिकली नो कि रिलेशनशिप किसके बीच में स्ट्रॉन्ग। ओके, दैट कैन हेल्प यू डिसाइड कौन सा पैरामीटर ट्यून करना है आपको ज्यादा। ओके, डज दैट मेक सेंस? दो वेरिएबल्स एक साथ कैसे मूव हो रहे हैं वही कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। कोरिलेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कोरिलेशन इज बेसिकली, न्यूमरेटर जो है कोरिलेशन और कोवेरियंस का सेम ही है। ओके, न्यूमरेटर सेम ही है। डिनोमिनेटर में आपको एक्चुअली स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन, या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन इन एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन इन वाई, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो वी बेसिकली स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करते थे, करेक्ट। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। वी आर, ये मल्टीप्लिकेशन है तो फिर ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। तो न्यूमरेटर इज योर कोवेरियंस पार्ट, डिनोमिनेटर में आप उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दोगे, you will get the correlation. Okay, correlation is always between -1 and +1, हमेशा -1 और +1 के बीच में रहेगा आपका कोरिलेशन, ठीक है। जब मैं आपको डेटा दिखाऊंगा ना, it will make all everything will make sense. Okay, बहुत बार आपने स्टॉक मार्केट में सुना होगा कि ये दोनों स्टॉक्स जो है दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। मतलब अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो दूसरा वो स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, एक साथ ऊपर जाते हैं। रिमेंबर, वो जो इसके स्टॉक्स होते हैं, टेक के स्टॉक्स होते हैं, वो सारे एक साथ ऊपर जाते हैं। रिटेल के स्टॉक सारे एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे जाते हैं, राइट। ऑल ऑफ दो स्टॉक्स आर बेसिकली कोरिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो कोरिलेशन से आपको एक चीज पता चलता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्लान करते हो, अगर आपको पता है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने हैं एंड यू वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो विच इज डाइवर्स, ठीक है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो विच इज डाइवर्स, तो आप चेक करोगे कि ये दोनों स्टॉक्स अगर हाईली कोरिलेटेड है, तो अगर दोनों में मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्स नहीं हो गया, बिकॉज दोनों कोरिलेटेड है ना एक दूसरे के साथ में। तो डाइवर्सिटी कहाँ से आ गई? एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या है? देयर इज नो डाइवर्सिटी इन इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वो चेक करते हैं कि ये स्टॉक और ये स्टॉक के बीच में कोरिलेशन कितना है। इफ देयर इज अ हाई कोरिलेशन दैट मींस डाइवर्सिटी उतना होगा नहीं है, तो मे बी इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स व्हिच इज हैविंग अ लोअर कोरिलेशन इफ द गोल इज टू डाइवर्सिफाई। ओके, that's a real world example again for correlation and covariance, how it is used. रिस्क बढ़ जाता है अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हो ठीक से। अगर आपके सारे के सारे स्टॉक्स एक ही तरह के हैं, then you basically are into the risk of concentrated investment in one particular asset. Make sense? Questions, anyone? सर इसके दो एग्जाम्पल सॉल्व करके दे दो। इसके सॉरी I didn't get the question. इसके एग्जाम्पल्स दो, मतलब दो दो एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे ना इसके। हाँ, I'll send you the examples homework में। You mean you want to calculate covariance and correlation, right? With hand by Yes. giving examples. Yeah, I'll send you. Okay, homework में send करूँगा मैं, ठीक है। Just remember the formulas and then I'll send. Okay. But आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीनिंग जो है वो आपको पता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। दोनों एक साथ कैसे मूव हो रहे हैं वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए कोरिलेशन और कोवेरियंस की जरूरत पड़ती है। ओके, ये है आपका कोरिलेशन का फॉर्मूला। ओके, ये है आपका कोरिलेशन का फॉर्मूला। कोवेरियंस का फॉर्मूला इज नथिंग बट, सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट लो, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट लो, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, दैट इज योर कोवेरियंस फॉर्मूला। आई एम नॉट राइटिंग इट हियर बिकॉज इट इज जस्ट सिंपल। ओके, ये जो न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इज योर कोवेरियंस एंड दिस इज योर कोरिलेशन।
कोरिलेशन हमेशा दो ही वेरिएबल्स के साथ में किया किया जाता है, ठीक है, एक्स एंड वाई के बीच में कोरिलेशन या फिर एक्स एंड एक्स के साथ में कोरिलेशन वगैरह। Alright, now this is where you can actually see the correlation by visualizing it. This particular plot is called as a scatter plot. ठीक है, इसको ड्रॉ कैसे किया गया वो बता देता हूँ, and then we can basically understand correlation even better. Share the whole screen. All of this is basics. Okay, हम लोगों ने अभी तक AI का पार्ट शुरू नहीं किया है, but this is all required. So imagine करो आपके पास में कुछ डेटा है, ठीक है, let's say this is stock 1. उसके बाद नाम ही डाल देता हूँ मैं, I just call it stock 1, ठीक है, so let's just give it a name, ठीक है, let's say this is AMD, okay, and let's say this is, let's say this is NVIDIA, okay, AMD की प्राइजेस यहाँ पर लिखता हूँ, से यहाँ पर मैं प्राइजेस लिखता हूँ NVIDIA। सबसे पहले तो यहाँ पर डेट्स आएंगे, ठीक है, इमेजिन करो कि यहाँ पर डेट्स है कुछ, ठीक है, यहाँ पर कल की डेट है, यहाँ पर उसके पहले की डेट है, उसके पहले की डेट है, ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पर डेट्स है सारे के सारे, ठीक है, एक ही डेट की बात हुई है ना। तो इस दिन में लेट्स से इसकी प्राइस थी $120, फिर उसके बाद अगले दिन इसकी प्राइस थी $122, उसके बाद में इसकी प्राइस थी $130, उसके बाद में इसकी प्राइस हुई $110, एक ड्रॉप था $109 लेट्स से, उसके बाद $105, ठीक है, फिर 99 के आसपास गया, फिर it jumped again to 110, jump to 150 from there, jump to 155 from there, and so on, ठीक है। Let's imagine that these are the numbers from AMD, डॉलर्स में प्राइस है ये, and this is for NVIDIA में you got a price of let's say 430, फिर स्टॉक का प्राइस अलग अलग रह सकता है, राइट, इसका रेंज अलग रहेगा, इसका रेंज अलग रहेगा, then it went from 430 to 450, okay, then it went from 450 to 470, okay, from there it went to let's say 400, okay, from there it went to 395, okay, फिर वहां से it went to 398, sorry 390 पे गया वो, okay, from there let's say it went to 385, okay, from there it went to 390 again, फिर आया उसका 480 के आसपास चला गया वो लेट्स से, then it jumped again to let's say 500, okay। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, ये दो स्टॉक्स है आपके उसमें AMD और NVIDIA, और आपको पता करना है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे करना है, सो दैट यू नो कि किस में इन्वेस्ट करना है, अगर मैंने इसमें इन्वेस्ट किया तो मुझे इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करने का तरीका है कि आप सबसे पहले एक वाई एक्सिस बनाओ और एक एक्स एक्सिस बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू बेसिकली राइट डाउन कि यहाँ पर लेट्स से यू पुट AMD, यहाँ पर यू पुट NVIDIA, पूरा नहीं लिखता हूँ मैं, NVIDIA वहां पर आपका वाई एक्सिस पे, NVIDIA आपका शुरू हो रहा है अराउंड 0 से शुरू होता है वो, तो ऊपर नंबर्स वगैरह मैं भूल जाऊंगा अभी, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज ये जो डेटा पॉइंट है, ये डेटा पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आएगा, ये डेटा पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आएगा, ये डेटा पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आएगा, ये डेटा पॉइंट इधर कहीं पर आएगा। सो बेसिकली सारे डेटा पॉइंट्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। बहुत सारे दिन अगर रहेंगे तो ये सारे डेटा पॉइंट्स अगर लेट्स से लास्ट 60 डेज का अगर डेटा है। क्वेश्चन स्टिल हियर एनीवन? दिस इज कॉल्ड एज अ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट समझ गया कैसे ड्रॉ किया? ओके अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये स्कैटर प्लॉट देख के आपको पता चल जाता है कि जब ये बढ़ रहा है, अगर आपने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है, आप एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ये देख के आपको पता चल रहा है जब ये बढ़ता है तब ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, जब ये कम है तो ये भी कम है, जब ये ज्यादा है तब ये भी ज्यादा है। ओके सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ अ पॉजिटिव कोरिलेशन।
ओके, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। इसका कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 120 माइनस इसका एवरेज, 430 माइनस उसका एवरेज, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, समेशन करेंगे सबका एक साथ, and then you get a correlation. Okay, let's say after doing the correlation you got a value of 0.87. Okay, let's say you got a value of 0.87. Imagine करते हैं. So this value is basically a correlation value that says that there is a strong correlation between AMD and NVIDIA. अगर आपके ranges कुछ ऐसे रहेंगे कि -1 से लेके 0.75, एक पेन और पेपर से लिखता हूँ, -1 से 0.75, -0.75, फिर आएगा 0.25, ये माइनस, फिर आएगा आपका 0 आएगा, फिर आएगा 0.25, फिर आएगा आपका 0.75, फिर आएगा आपका 1, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रांगली नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको कोरिलेशन का वैल्यू -1 से लेके -0.75 आया, देन दिस इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन मैं बताता हूं एग्जांपल के साथ, डोंट वरी, दिस इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। दिस, अगर इस रेंज में आपका कोरिलेशन आता है, देन दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, अगर आपका कोरिलेशन इस रेंज में आता है 0.75 to 1, फॉर एग्जांपल हियर दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, ओके, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन क्योंकि ये 0.87 इज इन दिस रेंज। ओके, ओके, this range is called as a neutral thing, न्यूट्रल कोरिलेशन। -0.25 से लेके 0.25 तक आप न्यूट्रल बोल सकते हो। ओके, देयर इज नो कोरिलेशन। ओके, ये टर्म्स याद रखो मैं जो बता रहा हूं अभी, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, न्यूट्रल एंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, लेट्स से यहां पर आपके पास में हम लोग गोल्ड प्राइस डाल देते हैं, गोल्ड प्राइस डाल देता हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर गोल्ड प्राइजेस भी यहाँ पर लिख देता हूँ सारे के सारे, ठीक है। फिर मैं जब उसका स्कैटर प्लॉट करता हूँ तब मुझे गोल्ड प्राइसेस के साथ में कुछ इस तरह से दिखता है। गोल्ड प्राइसेस स्कैटर प्लॉट करता हूँ तो लेट्स से मुझे कुछ इस तरह से वैल्यूज मिलते हैं गोल्ड प्राइस के साथ में। क्या मेकिंग अ assumption here, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज ट्रू। और फिर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो जब ये बढ़ रहा है तब ये कम हो रहा है, जब इसकी वैल्यू ज्यादा है तब इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम है, तो देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन हियर। नेगेटिव कोरिलेशन आपको दिख रहा है विजुअली, स्कैटर प्लॉट से आपको दिख जाता है विजुअली कि नेगेटिव कोरिलेशन है पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नहीं। ओके, so this is what an example of a positive correlation is, a negative correlation is, sorry, a neutral correlation is, and this is a negative correlation, strong negative correlation. Okay, so scatter plot help you visualize the relationship. Okay, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, विजुलाइज करने के लिए स्कैटर प्लॉट यूजफुल होता है। एक और तरीका क्या है इसको विजुलाइज करने का, एक और तरीका इसका विजुलाइज करने का ये भी है कि आप इन दोनों को, ये आपका टाइम है, ये दोनों स्टॉक्स को एक साथ इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। फिर दूसरे को दूसरे कलर से ड्रॉ करो, सॉरी, दूसरे को दूसरे कलर से ड्रॉ करो, ठीक है। दोनों स्टॉक को एक दूसरे के ऊपर अगर ड्रॉ भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं ना। यहाँ पे ये टाइम है आपका, दीज आर द डेट्स, दिस इज द वैल्यू। तो ओनली प्रॉब्लम इज ये आप ऐसे नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज है एएमडी का रेंज यहाँ से यहाँ तक 100 रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जब एनवीडिया ड्रॉ करने जाओगे तो एनवीडिया ऊपर कहीं पर ड्रॉ हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आप सेकंड यहाँ पर एक वाई एक्सिस नहीं डालते हैं, विच इज फॉर एनवीडिया, एंड देन यू कैन जस्ट बेसिकली
put it on top of each other. Okay, that is one more way of basically visualizing if something is positively correlated or not. Obviously assuming यहाँ पर हमारे पास में dates हैं, ठीक है, और वो डेट सीक्वेंस में, इसलिए हम लोग उसके एक्स एक्सिस पे डाल पाए ऐसे। लेकिन बहुत बार हमारे पास में डेटा होता है जो सीक्वेंस में नहीं होता इस तरह से। फॉर एग्जांपल हाउस प्राइजेस क्या रहेंगे? हाउस प्राइजेस मतलब क्या? आईडी है, हाउस आईडी, ठीक है, हाउस नंबर्स रहेंगे या फिर हाउस एड्रेसेस रहेंगे, उसको कैसे सीक्वेंस में डालोगे ना आप? ओके, फिर उसके बाद में चेक नहीं कर पाओगे फिर आप अगर हाउस प्राइजेस और नंबर ऑफ बेडरूम के साथ में कोरिलेशन करना चाहते हो तो। ओके, how do those two variables move with each other? That is what the correlation basically does, captures. Okay, ठीक है, हम लोग नया हम लोग कल से मॉडलिंग पढ़ना शुरू करेंगे, विच इज डिसीजन ट्री। सबसे पहला मॉडल है हमारा, और डिसीजन ट्री कैसे यूज करते हैं, कैसे बिल्ड होता है, वो हम लोग कल शुरू करेंगे। दिस इज द फर्स्ट supervised learning example that we are going to learn. Very very important, don't miss it. डिसीजन ट्री हम लोग पढ़ेंगे, रिग्रेशंस पढ़ेंगे, फिर हम लोग हमारा मशीन लर्निंग के जितने भी ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं वो सारे फर्स्ट मॉडल में पढ़ेंगे। सेकंड मॉडल में हमारा डीप लर्निंग वगैरह शुरू होगा, ठीक है। सो डोंट मिस टुमारो सेशन। एंड अगर एडमिशंस वगैरह क्लियर नहीं हुए हैं तो टॉक विद आशीष सर, टॉक विद दर्शना मैडम। इफ यू हैव एनी इश्यूज you can convey them, talk, but make sure you have that thing sorted as soon as possible. Okay, and then let's meet tomorrow, Monday हमारा session है। We'll start with decision trees tomorrow. Anyone has any question that should go in the recording?